आइज़ाया 42 चैप्टर 43 चैप्टर हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, बाद में पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से। पवित्र आत्मा हमें इन वचनों के भेद सिखा, इसके अंदर के गहरी बात जो हमको समझ नहीं आएगी खुदा, तेरे अलावा तू जब हमको सिखाएगा, समझाएगा, हमारी समझ खोलेगा तो हम इसे ग्रहण कर पाएंगे और हमारे चित्त में यह ठहरा रहेगा और तू ही इसमें हमें फिट एंड फिक्स करेगा और ईश्वरीय ऑर्डरलीनेस में हमें चलाएगा। ये सब भली बातों के लिए हम तुझसे विनती करते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता यीशु नासरी के नाम में। आमीन आमीन आमीन। Chapter 42, Isaiah chapter 42, Office of Christ, God's promise to him, an exaltation to praise God. First verse से पढ़ेंगे हम। Behold, my servant whom I uphold, mine elect in whom my soul delighteth. I have put my spirit upon him. He shall bring forth judgment to the Gentiles. He shall not cry, nor lift up, nor cause his voice to be heard in the street. A bruised reed shall he not break, and the smoking flax shall he not quench. He shall bring forth judgment unto truth. He shall not fail nor be discouraged till he have set judgment in the earth, and the isles shall wait for his law. Thus saith God the Lord, he that created the heavens and stretched them out, he that spread forth the earth and that which cometh out of it, he that giveth breath unto the people upon it, and spirit to them that walk therein. I, the Lord, have called thee in righteousness, and will uphold thine hand, and will keep thee, and give thee for a covenant of the people, for a light of the Gentiles, to open the blind eyes, to bring out the prisoners from the prison, and them that sit in darkness out of the prison house. I am the Lord, that is my name. And my glory will I not give to another, neither my praise to graven images. Hallelujah. 9 verse से आगे, Behold, the former things are come to pass, and new things do I declare. Before they spring forth, I tell you of them. Hallelujah. Sing unto the Lord a new song, and his praise from the end of the earth. Ye that go down to the sea, and all that is therein, the isles and the inhabitants thereof. Let the wilderness and the cities thereof lift up their voice. The villages that Kedar doth inhabit, let the inhabitants of the rock sing. Let them shout from the top of the mountains. Let them give glory unto the Lord, and declare his praise in the islands. The Lord shall go forth as a mighty man. He shall stir up jealousy like a man of war. He shall cry, yea, roar. He shall prevail against his enemies. I have long time holden my peace. I have been still and refrained myself. Now will I cry like a travailing woman. I will destroy and devour at once. I will make waste mountains and hills, and dry up all their herbs. And I will make the rivers islands, and I will dry up the pools. And I will bring the blind by a way that they knew not. I will lead them in paths that they have not known. I will make darkness light before them, and crooked things straight. These things will I do unto them, and not forsake them. ये सब को जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये यीशु मसीह के बारे में है, और यीशु मसीह जो काम करने वाला है उसका रिजल्ट में परमेश्वर हमारे अन्य जातियों में क्या काम करेगा वो वर्णन किया है। ओके, आप बहुत ध्यान से इसको हिंदी में पढ़ेंगे तब सुन लेना, ठीक है।
मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि ये बहुत प्यारा है, ये खुद इतना प्यारा है कि मुझे इसके अंदर से और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं महसूस होती है. ओके, दे शाल बी टर्न्ड बैक, दे शाल बी ग्रेटली अशेम्ड दैट trust in graven images, that say to the molten images, ye are our gods. Hear, ye deaf, and look, ye blind, that ye may see. Who is blind but my servant, or deaf as my messenger that I sent? Who is blind as he that is perfect, and blind as the Lord's servant, seeing many things, but thou observest not, opening the ears, but he heareth not. The Lord is well pleased for his righteousness' sake. He will magnify the law and make it honorable. But this is a people robbed and spoiled. They are all of them snared in holes, and they are hid in prison houses. They are for a prey, and none delivereth, for a spoil, and none saith, Restore. Who among you will give ear to this? Who will hearken and hear for the time to come? Who gave Jacob for a spoil, and Israel to the robbers? Did not the Lord, he against whom we have sinned? For they would not walk in his ways, neither were they obedient unto his law. Therefore he hath poured upon him the fury of his anger, and the strength of a battle, and it hath set him on fire round about. Yet he knew not, and it burned him, yet he laid it not to heart. Chapter 43. The Lord comforts the church with his promises. He foretells Babylon's destruction and his people's deliverance. First verse से पढ़ेंगे. But now thus saith the Lord that created thee, O Jacob, and he that formed thee, O Israel, fear not, for I have redeemed thee. I have called thee by thy name, thou art mine. When thou passest through the waters, I will be with thee, and through the rivers, they shall not overflow thee. When thou walkest through the fire, thou shalt not be burned, neither shall the flame kindle upon thee. For I am the Lord thy God, the Holy One of Israel. Thy Saviour. I gave Egypt for thy ransom, Ethiopia and Seba for thee. Since thou wast precious in my sight, thou hast been honorable, and I have loved thee. Therefore will I give men for thee, and people for thy life. Fear not, for I am with thee. I will bring thy seed from the east, and gather thee from the west. I will say to the north, Give up, and to the south, Keep not back. Bring my sons from far, and my daughters from the ends of the earth, even every one that is called by my name. For I have created him for my glory. I have formed him, yea, I have made him. Bring forth the blind people that have eyes, and the deaf that have ears. Let all the nations be gathered together, and let the people be assembled. Who among them can declare this, and shew us former things? Let them bring forth their witnesses, that they may be justified. Or let them hear and say, It is truth. Ye are my witnesses, saith the Lord, and my servant whom I have chosen, that ye may know and believe me, and understand that I am he. Before me there was no God formed, neither shall there be after me. I, even I, am the Lord, and beside me there is no Saviour. I have declared and have saved, and I have shewed when there was no strange God among you. Therefore ye are my witnesses, saith the Lord, that I am God. Yea, before the day was I am he. And there is none that can deliver out of my hand. I will work, and who shall let it? देखा, ये गारंटी है
कि हम छुटकारा निश्चित पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर के बिना और दूसरा कोई सामर्थ्य नहीं है। ओके, जो हमें पकड़ के रख सके और परमेश्वर उसे छुड़ा ना सके, ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं है, सिर्फ परमेश्वर ही सामर्थ्य है। ओके, तो छुटकारा निश्चित है, ये वचन हमको प्रूफ करता है। Thus saith the Lord, 14th verse से आगे, Thus saith the Lord your Redeemer, the Holy One of Israel, for your sake I have sent to Babylon and have brought down all their nobles and the Chaldeans whose cry is in the ships. I am the Lord, your Holy One, the Creator of Israel, your King. Thus saith the Lord, which maketh a way in the sea and a path in the mighty waters, which bringeth forth the chariot and horse and army and the power. They shall lie down together, they shall not rise, they are extinct, they are quenched as tow. Remember ye not the former things, neither consider the things of old. Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall ye not know it? I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert. The beasts of the field shall honor me, the dragons and the owls, because I give waters in the wilderness and rivers in the desert to give drink to my people, my chosen. This people have I formed for myself. They shall shew forth my praise, but thou hast not called upon me, O Jacob, but thou hast been weary of me, O Israel. Thou hast not brought me the small cattle of thy burnt offerings, neither hast thou honored me with thy sacrifices. I have not caused thee to serve with an offering, nor wearied thee with incense. Thou hast bought me no sweet cane with money, neither hast thou filled me with the fat of thy sacrifices, but thou hast made me to serve with thy sins. Thou hast wearied me with thine iniquities. I am he that blotteth out thy transgressions for mine own sake, and will not remember thy sins. Put me in remembrance, let us plead together. Declare thou, that thou mayest be justified. Thy first father hath sinned, and thy teachers have transgressed against me. Therefore I have profaned the princes of the sanctuary, and have given Jacob to the curse, and Israel to reproaches. Hallelujah. हालेलुया। बहुत बहुत लुभावना है ये अध्याय। ओके, 42, 43 सब आगे के सारे जो अध्याय पढ़ेंगे बहुत लुभावना अध्याय है, बहुत मज़ेदार है, बहुत कुछ है इसके अंदर जो सिर्फ पढ़ते रहने को मन करता है, क्योंकि वो परमेश्वर और भविष्यद्वक्ता के मुँह से वो हम बातों को सुन रहे होते हैं। तसल्ली आ जाती है, बहुत शांत हो जाता है मन। ओके, तो आप ध्यान से सुनिए जब ये पढ़ा जा रहा है तो, और आप अगर पढ़ रहे तो आप भी ध्यान से उसे स्वीकारिए। ओके, यशायाह 42 अध्याय 43 अध्याय हम पढ़ेंगे। प्रभु का दास 42 अध्याय पहले वचन से, मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। न वह चिल्लाएगा और न ऊंचे शब्द से बोलेगा, न सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए नरकट को वह न तोड़ेगा और न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा, वह न थकेगा और न हियाव छोड़ेगा, जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर न करे और द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोहेंगे। परमेश्वर जो आकाश का सृजने और
तनने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है। वह यूं कहता है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा, कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदी गृह से निकाले, और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। हालेलुया। जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले, यानी हम बोलते हैं ना जनरेशन कर्सेस, वो काल कोठरी में से परमेश्वर हमको बाहर लाता है। 8 वचन से आगे, मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरे को न दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को न दूंगा। हालेलुया। देखो, पहली बातें तो हो चुकी है, अब मैं नई बातें बताता हूँ, उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूँ। स्तुति का एक गीत। 10 वचन से आगे, हे समुद्र पर चलने वालों, हे समुद्र के सब रहने वालों, हे द्वीपों, तुम सब अपने रहने वालों समेत यहोवा के लिए नया गीत गाओ, और पृथ्वी के छोर से उसके स्तुति करो। जंगल और उसमें की बस्तियां और केदार के बसे हुए गांव जय जयकार करे। सेला के रहने वाले जय जयकार करे। वे पहाड़ों की चोटियों पर से ऊंचे शब्द से ललकारे। वे यहोवा की महिमा प्रकट करे और द्वीपों में उसका गुणानुवाद करे। यहोवा वीर के समान निकलेगा और योद्धा के समान अपनी जलन भड़काएगा। वह ऊंचे शब्द से ललकारेगा और अपने शत्रुओं पर जयवंत होगा। परमेश्वर द्वारा अपने लोगों की सहायता का वचन। बहुत काल से तो मैं चुप रहा और मौन साधे अपने को रोकता रहा, परंतु अब जच्चा के समान चिल्लाऊंगा। मैं हाँफ हाँफ कर सांस भरूंगा। पहाड़ों और पहाड़ियों को मैं सुखा डालूंगा और उनकी सब हरियाली झुलसा दूंगा। मैं नदियों को द्वीप कर दूंगा और तालों को सुखा डालूंगा। मैं अंधों को एक मार्ग से ले चलूंगा जिसे वे नहीं जानते, और उनको ऐसा पथों से चलाऊंगा जिन्हें वे नहीं जानते। उनके आगे मैं अंधियारे को उजियाला करूंगा और टेढ़े मार्गों को सीधा करूंगा। मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा और उनको न त्यागूंगा। जो लोग खुदी हुई मूर्तों पर भरोसा रखते और ढली हुई मूर्तों से कहते हैं तुम हमारे ईश्वर हो, उनको पीछे हटना और अत्यंत लज्जित होना पड़ेगा। ये वचन हमेशा मुंह से बोलते रहो। ओके, हमेशा जो लोग खुदी हुई मूर्तों पर भरोसा रखते और ढली हुई मूर्तों से कहते हैं तुम हमारे ईश्वर हो, उनको पीछे हटना और अत्यंत लज्जित होना पड़ेगा। हमेशा बोलो ये, क्योंकि यही है जो हमको हमारे घर परिवार को परेशानियों में डालते हैं। ठीक है, इस्राएल सीखने में असफल। 18 वचन से आगे, हे बहिरो सुनो, हे अंधो आंख खोलो कि तुम देख सको। मेरे दास के सिवाय कौन अंधा है? मेरे भेजे हुए दूत के तुल्य कौन बहिरा है? मेरे मित्र के समान कौन अंधा, या यहोवा के दास के तुल्य अंधा कौन है? तो बहुत सी बातों पर दृष्टि करता है परंतु उन्हें देखता नहीं है। कान तो खुले हैं परंतु सुनता नहीं है। यहोवा को अपनी धार्मिकता के निमित्त ही यह भाया है कि व्यवस्था की बढ़ाई अधिक करे, परंतु ये लोग लौट गए हैं। देखो, परमेश्वर चाहता है आप धन्यवाद, बलिदान, प्रशंसा, प्रार्थना, आराधना में लगे रहो। बहुत ज़्यादा मात्रा में, बड़े मात्रा में, अधिक मात्रा में आप ये करते रहो। परमेश्वर के धार्मिकता के निमित्त आप करते रहो। लेकिन देखो 22 वचन क्या कहता है, परंतु ये लोग लुट गए हैं। ये सब के सब गड़हियों में फंसे हुए और काल कोठरियों में बंद किए हुए हैं। ये पकड़े गए और कोई उन्हें नहीं छुड़ाता। ये लुट गए और कोई आज्ञा नहीं देता कि लौटा दो। ओके, तो हमारा प्रार्थना करने का मकसद क्या रहता है कि हम आवाज़ें लगाए, हम कहे लोगों को बाहर निकलो, यीशु के नाम से मैं तुझे आज्ञा करती हूँ, अब परमेश्वर के वचनों में हो जाओ, परमेश्वर की आराधना में हो जाओ। यीशु नाम से हम बोलते हैं शैतान तो उनको छोड़ दे। हर चीज़ में हम बोलते हैं, आवाज़ लगाते हैं, पुकार लगाते हैं, परमेश्वर को बोलते हैं
दुष्ट आत्माओं को हटाते। ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि परंतु ये लोग लुट गए हैं। ये सब के सब गड़हियों में फंसे हुए और काल कोठरियों में बंद किए हुए हैं। ये पकड़े गए और कोई उन्हें नहीं छुड़ाता। ये लुट गए और कोई आज्ञा नहीं देता कि लौटा दो। तुम में से कौन इस पर कान लगाएगा? कौन ध्यान करके होनहार के लिए सुनेगा? किसने याकूब को लुटवाया और इसराइल को लुटेरों के वश में कर दिया? ओके, तो आपको ध्यान देना है। परमेश्वर के लोगों की बंधुआई होने से हम परमेश्वर के लोग जो प्रार्थना कर सकते हैं, जो उनको छुड़ा सकते हैं, अगर हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की तो परमेश्वर हम लोगों से खुश नहीं रहता है। ओके, वो कहता है मैंने तो इनको छुड़ाने के लिए रखा है, लेकिन ये तो छुड़ाने का काम ही नहीं करते हैं। ओके, तो इसके लिए हमको चिंता करना पड़ता है कुछ ऐसे लोगों का जो परमेश्वर हमारे मन में बिठा देता है। ठीक है, आगे देखेंगे 24 वचन। किसने याकूब को लुटवाया? और इसराइल को लुटेरों के वश में कर दिया। देखा, इसराइल को लुटेरों के वश में कर दिया, यानी ऐसा कुछ होता है जो हमको किसी दुष्ट के वश में दे के आता है। ओके, क्या यहोवा ने यह नहीं किया जिसके विरुद्ध हमने पाप किया, जिसके मार्गों पर उन्होंने चलना न चाहा और न उसकी व्यवस्था को माना। ओके, तो हमारा कहीं पर भी बंधुआई में जाना हमारे ही गलतियों के कारण होता है। हम परमेश्वर का नहीं मानते हैं, हम परमेश्वर के विरोध कुछ कर लेते हैं और फिर हमारा मार्ग भटका देता है परमेश्वर। ओके, हमें उस पर चलने नहीं देता है जहाँ पर हमको होना चाहिए। इस कारण उस पर उसने अपने क्रोध की आग भड़काई और युद्ध का बल चलाया। और यद्यपि आग उसके चारों ओर लग गई तो भी वह न समझा, वह जल भी गया तो भी न चेता। ओके, तो हमारे स्पिरिचुअल डलनेस में हम समझ नहीं पाते हैं कि हम परमेश्वर से फटकारे जा रहे हैं। हमारा इसी वजह से रिपेंटेंस, आप कभी भी कोई भी परेशानी आने दो, रिपेंट किया करो, रिपेंट करो, पश्चाताप करो। परमेश्वर तेरे आज्ञा के पालन ना करने की वजह से मैं ऐसे मुसीबत में हो गई हूँ, तो परमेश्वर मुझे माफ़ कर दे। ओके, काफ़ी है, परमेश्वर रास्ता खोल देता है उसकी बात। लेकिन अगर आप नहीं ऐसा करेंगे, पश्चाताप नहीं करेंगे, तो इसका मतलब आप बंधुआई में और ज़्यादा लंबे समय तक पड़े रहेंगे। ठीक है, परमेश्वर ही एकमात्र छुड़ाने वाला। 43 अध्याय पहले वचन से, हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यों कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है। हालेलुया। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इस्राएल का पवित्र मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कुश और सबा को देता हूँ। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य के लोगों को दे दूंगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। मैं उत्तर से कहूँगा दे दे, और दक्षिण से कि रोक मत रख। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी के छोर से ले आओ। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। इस्राएल परमेश्वर का गवाह। 8 वचन से आगे,
आंख रहते हुए अंधे और कान रहते हुए बहरे को निकाल ले आओ। जाति जाति के लोग इकट्ठे किए जाएं और राज्य राज्य के लोग एकत्रित हो। उनमें से कौन यह बात बता सकता या बीती हुई बातें हमें सुना सकता है? वे अपने साक्षी ले आए जिससे वे सच्चे ठहरे। वे सुन ले और कहे, यह सत्य है, यहोवा की वाणी है। तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई परमेश्वर न हुआ और न मेरे बाद कोई होगा। मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। मैं ही ने समाचार दिया और उद्धार किया और वर्णन भी किया जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता न था। इसलिए तुम ही मेरे साक्षी हो। यहोवा की यह वाणी है, मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ। मेरे हाथ से कोई छुड़ा न सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ तब कौन मुझे रोक सकेगा? बेबीलोन से बच जाना। 14 वचन से आगे, तुम्हारा छुड़ाने वाला और इस्राएल का पवित्र यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे निमित्त मैंने बेबीलोन को भेजा है और उसके सब रहने वालों को भगोड़ों की दशा में और कसदियों को भी उन्हीं के जहाजों पर चढ़ा कर ले आऊंगा जिनके विषय वे बड़ा बोल बोलते हैं। मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र इस्राएल का सृजनहार तुम्हारा राजा हूँ। यहोवा जो समुद्र में मार्ग और प्रचंड धारा में पथ बनाता है, जो रथों और घोड़ों को और शूरवीरों समेत सेना को निकाल लाता है। वे तो एक संग वही रह गए और फिर नहीं उठ सकते। वे बुझ गए, वे सन की बत्ती के समान बुझ गए हैं। वह यो कहता है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। गीदड़ और शतुरमुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। ओके, अब ये हम जो दुष्टता के जगत में रह रहे हैं, यहाँ की बातों में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा उंडेल दिया है। तो इतनी दुष्टता के मध्य में भी परमेश्वर का आत्मा हमें सुंदरता का जीवन बहाल किया है। हालेलुया। देखिए 21 वचन, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करे। देखिए मकसद क्या है, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से हमें क्यों भरपूर किया है? क्योंकि हम उसके गुणानुवाद करें। हालेलुया। 43 अध्याय का 1 वचन से 7 वचन आपने अपने ऊपर बोलते रहना है, ठीक है? वो याकूब के लिए बोला, लेकिन हमने अपने ऊपर लेना है वो शब्दों को। इसराइल का पाप 22 वचन से आगे, तो भी हे याकूब, तूने मुझसे प्रार्थना नहीं की, वरन हे इसराइल, तो मुझसे उकता गया है। मेरे लिए होम बलि करने को तो मेमने नहीं लाया और न मेल बलि चढ़ाकर मेरी महिमा की है। देख, मैंने अन्न बलि चढ़ाने की कठिन सेवा तुझसे नहीं कराई, न तुझसे धूप लेकर तुझे थका दिया है। ओके, कुछ ऐसी सेवा है जो परमेश्वर कठिन कहता है। ओके, और चुन कर रखा है उसने, किसको वो सेवा देगा, कैसे प्रकार की। तो तेरे लिए सुगंधित नरकट रुपए से मोल नहीं लाया और न मेल बलियों की चर्बी। तो मेरे लिए सुगंधित नरकट रुपये से मोल नहीं लाया और न मेल बलियों की चर्बी से मुझे तृप्त किया, परंतु तूने अपने पापों के कारण मुझ पर बोझ लाद दिया है और अपने अधर्म के कामों से मुझे थका दिया है। हालेलुया। परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है हमारे गलत कामों से। ओके, 25 वचन से आगे, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूँगा। ये परमेश्वर खुद अपनी खातिर हमको माफ़ करने के लिए उठता है। ओके, हम मूर्खता करते हैं, हम दोबारा पाप पे मतलब हम गलत कामों में, शरीर कामों में पड़ जाते हैं, लेकिन दुष्ट कामों में पड़ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता, फिर भी मैं जानता हूँ कि अब मुझे ही उठाना है तुझे और तुझे साफ करना है, शुद्ध करना है और दोबारा मेरे रास्ते पर चलाना है। ओके, इसके लिए वचन लिखा है कि धर्मियों के बीच में
अगर कोई गिरता है तो वो 7 बार उठा लिया जाएगा। आमीन। लेकिन दुष्ट में अगर कोई गिर जाता है तो वो एक बार गिरता है और सदा के लिए गिरा हुआ ही पड़ा रहता है, उठ नहीं सकता है वो। 26 वचन से आगे, मुझे स्मरण करो, हम आपस में विवाद करें, तू अपनी बात का वर्णन कर जिससे तू निर्दोष ठहरे। तेरा मूल पुरुष पापी हुआ और जो मेरे और तुम्हारे बीच बिचवाई हुए वे मुझसे बलवा करने चले आए हैं। इस कारण मैंने पवित्र स्थान के हकीमों को अपवित्र ठहराया। मैंने याकूब का सत्यानाश और इस्राएल को निंदित होने दिया है। हालेलुया। ये सब परमेश्वर की बातें पढ़ने में बहुत आनंद आता है, ठीक है, क्योंकि ये खुद परमेश्वर भविष्यद्वक्ता के मुंह से बोल रहा है। हम 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान देखेंगे। पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा इन वचनों का आनंद हम में भर दिया और हमें फिट एंड फिक्स किया, ईश्वरीय ऑर्डरलीनेस में हमको लाया। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, नासरी यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, जॉन 4 चैप्टर 10 वर्स से 18 वर्स, 1 किंग्स 12 चैप्टर। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 10 वचन से 18 वचन, पहले राजाओं की पुस्तक 12 अध्याय। हम अकेले में बैठकर व्यक्तिगत समय में इसे पढ़ना है, पर्सनल टाइम में इसे पढ़ना है। इनमें से परमेश्वर का आत्मा हमको कुछ बातों के अंदर हमारे मन खोल देगा, समझ देगा, हमने उसको लेना है, उसके अनुसार अपने जीवन को चलना है। ओके। और जब 2 साल के अंत में देखेंगे परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए हुए परमेश्वर के उपयोग का बर्तन होकर हम निखर कर आएंगे। और ऐसा होने के लिए हमें परमेश्वर का आत्मा मौजूद है हमारी सहायता करने के लिए। हालेलुया। हमेशा पवित्र आत्मा आपके लिए मदद करता है वचन सीखने के लिए, और ये अनुग्रह का, सच्चाई का आत्मा हमारे अंदर निवास कर रहा है, हमको वचन सिखा रहा है, तो हमने इसका निश्चित लाभ उठाना है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। पिता परमेश्वर, सारे बाइबल रीडिंग में हमारी सहायता करने के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर वचनों के भेद खोलकर हमको सिखा रहा है, फिट एंड फिक्स कर रहा है, ऑर्डरलीनेस, डिवाइन ऑर्डरलीनेस, ईश्वरीय व्यवस्थितपन में हमें लेकर आ रहा है। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, नासरी यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।